تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اس کو نا مارا بھی ہے اور اس کی یہ رو بھی رہی تھی، اور یہ جس طرح چل کے آ رہی ہے نا مجھے کچھ شک اور ہی لگ رہا ہے کہ میں نے اس کے کپڑے دیکھے ہیں، مجھے شک مزید اور ہو گیا۔ کپڑے پہ ایسا کیا تھا؟ کپڑوں پہ داغ تھے۔ ہم نا اوپر سے آپ کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ کی آواز اوپر بھی جاتی ہے، تو ماما کو نہ بتانا۔ آپ نے فوراً اپنی ماما کو کیوں نہیں بتایا کہ؟ میں ڈر گئی تھی، انہوں نے ڈرایا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے کسی کو بتایا آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو مار دیں گے۔ تو یہ تیسرے فلور پہ ان کی دادی رہتی ہے، اسی گھر کے اسی گھر میں تیسرے فلور پہ؟ ہاں جی، یہاں پہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، یہاں پہ کوارٹرز ہیں۔ جی جی۔ تو یہ نا اپنی دادوں کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں انہوں نے پکڑ لی۔ تو میرے بچے کہہ رہے تھے ماما آپ کہہ رہی تھی دیکھو پولیس ہماری مدد کرے گی، یہ مدد کرے گی، جو پاپا کو بدتمیزی سے لے کے جا رہے ہیں اور ملزم کو کتنی آرام سے پیار سے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم، میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ناظرین، میں اس ٹائم ایک متاثرہ گھر کے اندر موجود ہوں، اور جو میرے کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے صبا مشتاق، یہ 10 سالہ بچی ہے، اس کے ساتھ اس کی والدہ ہے۔ اس کے ساتھ 2 لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ جی آپ نے صحیح سنا، 10 سالہ بچی صبا مشتاق کے ساتھ 2 اوباش لڑکوں نے زیادتی کی، اس کے ساتھ ریپ کیا، اور یہ ابھی کلی ہے، پھول تو بنی نہیں ہے، اور اس کو مسل دیا گیا۔ اور آئیں ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں یہ سارا معاملہ کیسے بنا، یہ کون لوگ تھے جس نے اس بچی کو نہیں بخشا۔ آئیں ان سے تفصیل ساری پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں جی، آپ کی بیٹی کے ساتھ صبا مشتاق کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کو کیسے پتہ چلا اس کا؟ بچے اسکول سے آئے ہیں اور بچوں کی عادت ہے یونیفارم چینج کے دادوں کی طرف چلی جاتی ہیں، تو یہ تیسرے فلور پہ ان کی دادی رہتی ہے، اسی گھر کے اسی گھر میں تیسرے فلور پہ؟ ہاں جی، یہاں پہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، یہاں پہ کوارٹرز ہیں۔ جی جی۔ تو یہ نا اپنی دادوں کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں انہوں نے پکڑ لیا، وہ جانے نہیں دیا انہوں نے، وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ تو کیا نام ہے ان کا بتائیں گی؟ ہمیں ان کا نام نہیں پتا۔ اچھا۔ تو انہوں نے دروازہ کھلا ہوا تھا تو یہ اوپر نہیں جا پائی، انہوں نے کھینچا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ ان کے منہ پہ اوپر ہاتھ رکھا، مارا بھی ہے ان کو، ڈرایا بھی ہے پسٹل نکال کے، جس طرح بچی کے ساتھ انہوں نے ڈرایا کیا۔ پھر بچی کو چھوڑ کے بھی وہ خود ہی نیچے گئے ہیں۔ اچھا۔ کیونکہ بچی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں جا کہاں رہی ہوں، وہی بچی کو نیچے چھوڑ کے گئے ہیں۔ بچی گھر آئی ہے، بچی جس طرح چل کے آ رہی تھی نا تو ایسے لگا مجھے، تو پہلے یہی شک ہوا کہ بچی کہیں گر گئی ہے۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا نا یہ گری بھی نہیں لگ رہی تھی، پھر وہ یہ بیٹھی ہے، بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، چارپائی کے اوپر چڑھی ہے، 2 منٹ لیٹ گئی ہے، لیٹی کہہ رہی ماما مجھے نا ٹیوشن جانا ہے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کو ٹیوشن چھوڑا ہے تو وہاں بھی یہ کھڑی رہی ہے۔ ٹیوشن والی باجی نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نا بیٹھ نہیں رہی۔ میں نے کہا میں نے اسے 2 منٹ بات کی ہے، پوچھا اسے میں نے، تو اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے۔ کہہ رہی اس کی حالت ایسے کی ہوئی ہے جیسے اس کو کسی نے مارا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اس کو نا مارا بھی ہے اور اس کی یہ رو بھی رہی تھی، اور یہ جس طرح چل کے آ رہی ہے نا مجھے کچھ شک اور ہی لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں آپ جائیں، میں نا بچی سے پوچھتی ہوں۔ بچی سے پوچھتے رہے ہیں، بچی نے کچھ بات نہیں بتائی کیونکہ بچی سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بچی سیم گئی تھی؟ سیم گئی تھی اور بول بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بچی کو ہم گھر لے آئے تھے ٹیوشن سے واپس، تو پھر میں نے بچی سے پوچھا تو میں بار بار پوچھتی رہی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہ آواز ٹائم کے ساتھ اس کی آواز نا بالکل بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا اچھا۔ تو بخار بھی مزید بڑھنے لگ گیا، طبیعت اس کی بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہم رات کو اس کی میڈیسن لے کے آئے ہیں، اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے نا 5 سے 6 دن تک ہم یہی پوچھتے رہے ہیں، جس طرح یہ کپڑے چینج کرتی تھی اتارتی تھی، میں نے اس کے کپڑے دیکھے ہیں، مجھے شک مزید اور ہو گیا۔ کپڑے پہ ایسا کیا تھا؟ کپڑوں پہ داغ تھے، اور پھر میں نے اس کے پاپا سے بات کی ہے، میں نے اس کے پاپا کو بتایا تو اس کے پاپا نے بولا کہ بچی سے پہلے پوچھتے ہیں، بچی جو بتائے گی ہمیں پتا ہوگا، کیونکہ بچی بتائے گی نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا۔ ابھی تک آپ کا شک وہاں نہیں جا رہا تھا؟ ہمارا شک نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر ہم نا دن بہ دن مزید اسے پوچھتے رہے، جیسے 5-6 دن گزرے ہم نے اس پر توجہ ہٹا دی۔ ہم نے کہا اب ہم اسے کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مزید بخار بھی تیز ہے اور وہ بیمار بھی بہت زیادہ ہے، وہ باہر بھی نہیں جا رہی۔ ہم کہتے ہیں نا کچھ لے آؤ، باہر چلی جاؤ، تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی، تو کہتی نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پھر ہم نے نا 2 دن توجہ ہٹا دی اس کے اوپر، تو یہ رات کو سو رہی ہے، سوئے ہوئے اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے خواب میں دیکھ رہی ہے۔ اس کے پاس آدمی آئے ہوئے ہیں، جس طرح پکڑا ہوا تھا، جس طرح انہوں نے کیا تھا، یہ ویسے جکڑی ہوئی تھی، جسم بھی بالکل ویسے اس نے کیا ہوا تھا۔ تو اس کی بہن دیکھ رہی تھی، اس نے اس کو دیکھا اچھے سے، پھر اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا اور یہ اس نے ہوش کیا، پھر اس کو پانی پلایا، پھر یہ لیٹ گئی ہے، پھر یہ باتیں کرنے لگی،
सारी बात इसने बताई बोल के जो उसके साथ हुआ था। फिर इसकी ये बहन, बहन को बताइए उसने? हाँ जी बहन, फिर इसकी बहन ने इसको अच्छे से पानी पिला के होश में लाया है, बिठाया, इसको प्यार किया है। तो इसने फिर सारी बात बताई कि आप ही मम्मा को ना बताना। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी मम्मा पापा को बता दिया ना तो हम मार देंगे आपको, हम ना ऊपर से आपको देखते भी हैं और आपकी आवाज़ ऊपर भी जाती है, तो मम्मा को ना बताना। तो मेरी बेटी ने फौरन मुझे बताया कि मम्मा सबक साथ वही हुआ है जो आप, जिसका पहले दिन से आप शक कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसके पापा को बताया, तो इसके पापा को जैसे ही पता चला वो कमरे से बाहर निकले हैं। सही। उन्हें पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें। तो मोहल्ले वालों ने फिर इनको हौसला दिया और उनसे बात की। तो फिर हमने उनके कहने पर 15 पे कॉल कर ली। 15 पे जैसे हमने कॉल किया, 15 वाले आए हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले बच्ची को उठाया है, बच्ची लेटी हुई थी, और सर से जैसे ये हिजाब किया हुआ इन्होंने वैसे किया हुआ था, उतार के उन्होंने नीचे फेंका और कहा कि बेटा आप खड़े हो जाओ, सही। आपके साथ क्या हुआ है, आपने फोन करके हमें बुला के और आप खुद लेटे हुए आराम से। बच्ची ने फिर कहा, पहले वो डरी हुई थी, वो मुझे देख देख के घबरा रही थी, तो वो कह रही थी कि मामा ये मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, तो आपसे बात कर रहे हैं। तो लेडीज भी उनके साथ नहीं थी, मर्द थे, और उन्होंने इतने गंदे तरीके से बदतमीजी से इसके साथ बात की, कैसे किया, क्या हुआ, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में। मेरे बाकी के बच्चे भी परेशान हो गए। तो फिर इनको साथ लेके वो उसके कमरे में गए हैं, जिस कमरे में उन्होंने पकड़ा था इनको। तो वो उनके पास लेकर गए हैं, उनको दरवाजा बजाया, वो निकले हैं बाहर, उनको उन्होंने पकड़ लिया था। पकड़ के बाहर नीचे लेकर आए हैं। तो उस आदमी ने कहा कि सर जी आप ना मेरी बात सुने, पहले SHO से बात कर लें। उन्होंने SHO से बात करवाई है, और उनको फिर जैसी उसकी बात की उनको आराम से लेके गए और इनके पापा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। बदतमीजी से इसके पापा को घसीट में गाड़ी ले बैठाया, और बच्ची रो रही थी। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा आप कह रही थी देखो पुलिस हमारी मदद करेगी, ये मदद करेगी। जो पापा को बदतमीजी से लेके जा रहे हैं और मुलजिम को कितने आराम से प्यार से लेके जा रहे हैं। अच्छा। फिर वहां ले जाकर उन्होंने हमारी FIR भी ना काटी। FIR कितनी देर बाद कटी आपकी? जैसे ही वो लेके गया ना उनके, तो सबसे पहले वहां पे इतना रश हो गया, उनके पठान भी आ गए, वकील भी आ गए, FIR कटने ही नहीं दी उन्होंने। कितनी देर बाद कटी? तकरीबन रात के 12 बजे के बाद काटी उन्होंने। उसी दिन ही काटी, रात के 12। अच्छा, अब कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? उनका एक ही मुजरिम पकड़ा हुआ, एक अभी फरार है। तो उसने एडमिट कर लिया कि नहीं? वो नहीं, उससे बात ही नहीं बच्ची का मेडिकल हुआ? मेडिकल भी नहीं होने दे रहे। नहीं, कौन नहीं होने दे रहे? ये मैम नुशी ने कहा कि आप मेडिकल करवाना चाहती, मैंने कहा जी। हाँ। तो जज के पास लेके गए हैं। अच्छा। वहां जाके उन्होंने क्या बात की हमारे सामने, तो उसने यही कहा कि बच्ची की 10 साल जो एज है इसकी मेडिकल होती नहीं है सर, आप बताएं। तो उन्होंने भी हमारे सामने यही कहा कि 10 साल की बच्ची है, इसकी मेडिकल होती नहीं है। तो अगर माँ बाप करवाना चाहते हैं तो उनसे पूछ लो। तो आपने क्या कहा? उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं कि आप माँ बाप अगर करवाना चाहते हैं तो पूछ लो। तो उस वक्त हमने बोला था, हमने कहा कि इनकी मेडिकल करवानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वहां से निकल के जो उन्होंने कहा है ना वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो उस वक्त कम नहीं। आप फिर जज साहब के यहाँ पेश होती, आप कहती हैं कि जी हमारा मेडिकल नहीं हो रहा। हमने कहा जैसे कई बार हम पेश हुए। तो क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा वो मैम कह रही है कि आपका मेडिकल करवा दिया है, हो जाएगा, करवा दिया है। ये समझ नहीं आ रही। आपने कहा जी करवा दिया, तो करवा दिया तो कहाँ है? वो जो मेडिकल की रिपोर्ट उन्होंने बनाई हुई थी वो प्राइवेट जैसे बनाई थी, हमें नहीं पता थी, इसकी मेडिकल होने ही नहीं दिया। जब जज साहब को दोबारा उन्होंने बताया ना कि इनकी मेडिकल नहीं हो रही, उनके माँ बाप करवाना चाहते हैं, तो वो कह रहे थे बस। उसके बाद हमारे जज साहब के सामने पेश ही नहीं होने दिया। बच्ची से भी पूछा उन्होंने, बच्ची से बयान लिया, बच्ची ने सारी डिटेल्स बताई है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि बेटा आप मेडिकल करवाना चाहती हो। तो बच्ची से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा सर जी बच्ची को तो पता भी नहीं मेडिकल होती क्या है, आप हमसे पूछिए, हम करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये इनकी वालदा थी। अब पूछते हैं उस 10 साला सवा मुश्ताक से जिसके साथ मुबैना ज्यादती हुई है, और ज्यादती करने वाला एक शख्स गिरफ्तार है, दूसरा इस टाइम फरार है। ये गरीब लोग हैं, इनकी जो दाद रसाई है दूर तक तो नहीं है। ये अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, कानून का इन्होंने दरवाज़ा खटकाया, लेकिन बकौल इनके कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आए, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा बताएं, ये सारा वकूआ जो मामा ने आपके सामने रखा है इसी तरह ही हुआ है? जी। कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो आपने फौरन अपनी मामा को क्यों नहीं बताया आके? मैं डर गई थी। किस वजह डर गई थी आप? उन्होंने डराया था, उन्होंने कहा था अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। अच्छा, ये पहले भी इस तरह करते थे कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है? फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है? जी। आप कहाँ जा रही थी? मैं वो दादू की तरफ जा रही थी। दादू की तरफ जा रही थी, तो ये भी उसी फ्लैट्स में रहते हैं? जी। ये भी इधर ही रहते हैं क्वार्टर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ उन्होंने ये हरकत की है तो आपको फौरन आपकी मामा को आके क्यों नहीं बताया, आपने लेट क्यों बताया? मैं डरी हुई थी। तो फिर कैसे हिम्मत आई, आपने फिर अपनी बहन को बताया? वो रात के 2 दिन बाद मैंने अपनी बहन को बताया, तो मेरी बहन ने, फिर मैंने बहन को नहीं बताया, फिर मैं अपनी बहन के गले, मेरी बहन ने मुझे उठाया, तो फिर मैंने अपनी बहन के गले लग के अपनी बहन को सब बता दिया, तो मेरी बहन ने फिर मेरी मम्मा को बता दिया। बेटा याद रखें, कोई भी जिसको आप नहीं जानती और कोई आपको हाथ लगाए, टच करे, तो फौरन आपने अपने घर वालों को बताना। अगर आप बाहर हैं तो कोई बड़ा जो गुजर रहा है उसको आपने बताना है। अब ये याद रखना है, ना किसी से डरना है, ना घबराना है। जो हकीकत है बेटा वही आपने बयान करनी है। जी। तो अब तो डर नहीं लगता ना? लगता डर? जी। अब ये घर से बाहर ही नहीं जाती। ना अच्छा, ये मुझे ये स्कूल बताएं, आप पहले उनको जानती थी? नहीं, पहले देखा था आपने उनको? पहले इनको नहीं देखा था। आपके ऊपर वाले फ्लैट्स में रहते तो आपने नहीं देखा इनको? नहीं। पहले जानती नहीं थी इनको? नहीं। कभी आपका गुजर बसर में देखा नहीं हुआ, टाकरा नहीं हुआ उनका? ये फर्स्ट टाइम आपने उनको देखा था? जी। नाज़रीन, ये देख रहे हैं, ये सबा मुश्ताक 10 साल की बच्ची है, ये क्या बताएगी, और ख़ुद भी देखें अभी तक सहमी हुई है। और देखें जब ये बड़ी होगी क्या इसके ज़हन से वो असरात जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारे इधर जो है मसला है कि एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन बताते ही नहीं हैं, ठीक है ना? बताना चाहिए बच्चों को क्या गलत है, क्या सही है, किससे बचना है। कोई अनजाना बंदा आपको हाल लगाए तो आपने उससे क्या कहना है। ये हमारी यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है, इसलिए आए दिन ऐसी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी बच्चियों को सेक्स एजुकेशन का बताया ही नहीं है। और बताना चाहिए, बाहर के पूरी दुनिया में बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये रुझान ही नहीं है। फिर घर वाले पीटते हैं, रोते हैं, क्योंकि उस बच्ची को पता ही नहीं होता कि क्या है। लेकिन देनी चाहिए एजुकेशन, स्कूल में देनी चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखानी चाहिए। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहेंगी आईजी पंजाब साहिब को, सीसीडी को, मरियम नवाज साहिबा को क्या कहेंगी? वो तो कहती है ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। मेरी उनसे यही गुजारिश है, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब से, कि आप भी बेटियों वाली हैं, हम भी बेटियों वाले हैं। बात एक बेटी की नहीं, पूरी कौम की बेटियों की। अगर आप हमें इंसाफ दिलवाएंगी तो हमें पूरी दुनिया की बेटियों को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अगर आज हमने उनको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, किसी तरह भी केस वापस ले लिया, तो वो दरिंदे आज़ाद हो गए, तो वो आज इस बेटी को नहीं किसी और बेटी को निशाना बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी बेटी का इस तरह निशाना बने। हम चाहते हैं उनको सख्त सज़ा दें। जो सीसीडी निकली हुई, जो उनकी ने सज़ा निकाली है, वही उनको सज़ा दें। क्योंकि वो लोग तो सीसीडी के बारे में बहुत सारी बुरी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीसीडी वाले कुछ नहीं करेंगे। पहले आपकी बेटी को लेकर जाएंगे, उसका मेडिकल ऐसे करवाएंगे, ये होगा वो होगा, उसके बाद जाके इंसाफ मिलेगा। तो मैंने पहले भी उनको ये पैगाम दिया था, तो अभी मैं यही कह रही हूँ कि वो आप लोगों के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं और पैगाम गलत बातें सुना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। नाज़रीन, देखिए ये माँ की दास्तान थी और एक माँ का दर्द भी था अपनी बेटी के लिए। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उस बेटी तक भी पहुँचे और वो बेटी भी महफूज हो जाए जिसके से ज़्यादती होनी है या होगी। और इस बच्ची के साथ तो हो गई है और इसके ज़हन में भी बैठ गया है। हसन शहबाज को याद दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।